Okay, a very good afternoon to everybody. We just continue with the play that we started the other day. It is Mother's Day, and we have to continue from page number 40. Can anyone just summarize the part that we did in brief? Online students, बता सकते हो बेटा हमने क्या पढ़ा अभी तक? महक again? हाँ जी बोलो महक. Ma'am, in this chapter there are two neighbors. They were talking with each other, and Mrs. Fitzgerald, who knows fortune, she tells Mrs. Pearson that they both can swap their personalities, and Mrs. Fitzgerald will teach a lesson to her family because Mrs. Pearson's family does not says her thank you for her work. Yes, they give no credit to her for her work. They don't treat her well, and she doesn't know where to and how to start with them. So she tells that we are going to swap our personalities, and I will do the needful. You just wait and watch. You go to my home, relax, and actually, when the first one to encounter Mrs. Fitzgerald, who has Mrs. Pearson, who has the personality of Fitzgerald now, is the daughter Doris, and she's red-eyed because she sees that her mother has spoken very rudely with her, and she calls Charlie Spence buck teeth and half-witted. She says, "I wouldn't even go dead with him," and she says, "If I were your age, I would have found somebody better." So all sorts of things, and she didn't prepare anything for them, no tea ready, and she says that I'm going to go out myself. So all these sorts of things she says, and even with her son, and he wants that his mother should swap out of that mood, the mood that she is in. Okay, and she says, "I don't like mending. I'm not going to do anything, any alterations for you people now." Okay, and she says, "If I feel terrible," this is Doris saying, if I do look terrible, it's your fault. You made me cry. Why? What did she do? What did she do? Never you mind. Mrs. Pearson rising and preparing to move to the kitchen. She doesn't, pay attention to what her children are talking about, and she says, "I have we any stout left? I can't remember." Now, what is stout? She says, "Have we any stout left?" It's a kind of a hard drink, and she says, "हमारे घर में पड़ी है, मुझे याद नहीं है." And Silas says, "Bottle or two, I think, but you don't want stout now. It's afternoon time. Afternoon, evening time पे says, normally we don't drink stout. तो इस time पे आपको क्यों चाहिए?" And she says, "I do. What for?" वो कहते हैं, "किस लिए आपको चाहिए?" She says, "To drink, you clot." What do you understand by clot? What is clot? I need it, and I need it for drinking. You clot. What do you mean by clot here? You idiot. ठीक है, दिस इज व्हाट शी मीन्स टू से, कहते तुम क्या लग रहा है और किस लिए चाहिए, मुझे पीने के लिए चाहिए और किस लिए चाहिए. Mrs. Pearson exits right. Instantly, Cyril and Doris are in a huddle. Are in a huddle means they come together. They're in a heap together. इकट्ठे हो जाते हैं वो. They are close together and they rapidly whisper to each other. वो आपस में बातें कर रहे हैं कि पता नहीं ये क्या हमारी मदर को क्या हो गया है. ठीक है, this is what they are discussing about. What it has she been like that with you also? Cyril से पूछ रही है. ठीक है, Cyril is the name of the brother. George is the husband. Yes, no tea ready, couldn't care less. Well, I'm glad it's both of us. I thought I done something wrong. Doris कहती शुक्र है भाई दोनों के साथ ऐसे बिहेव किया, मुझे लगा मैंने ही कुछ गलत कर दिया तो मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है. सो डिड आई, बट इट्स हर ऑफ कोर्स. मुझे भी ऐसे लगा कि मैंने कुछ बुरा कर दिया है, बट इट इज हर ऑफ कोर्स. मतलब प्रॉब्लम आज हम में नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है. इट इज विद हर, प्रॉब्लम इज विद हर. उन्होंने वो पता नहीं ऐसे क्यों बिहेव कर रही है. शी वॉज स्मोकिंग एंड शी वॉज प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन. आई कुडंट बिलीव माई आईज. तो मैं घर में एंटर करी, हमारी मदर सिगरेट पी रही थी, कार्ड्स खेल रही थी. मतलब ये क्या था? What was it? I couldn't even believe. I was so shocked that I couldn't even believe my eyes. I asked her if she was feeling off color and she said she wasn't. कहता मैंने तो ये भी पूछा, उनका मूड खराब है, तबीयत ठीक नहीं है, पर वो कहती बिल्कुल ठीक है. I'm feeling perfectly fine. आज से अच्छा मैंने कभी फील ही नहीं किया. This is what she said. Well, she's suddenly all different and that's what made me cry. कहती एकदम से हमारी मदर है, एकदम से बिल्कुल ही अलग हो गई है. And this is what made me cry. It wasn't what she said. जो उन्होंने कहा मुझे वो बुरा नहीं लगा, पर जिस तरह से कहा, the way she said it and the way she looked, कैसे हमें देख रही है वो, मतलब हमारी माँ है वो, मतलब
क्या हो गया सडनली, व्हाट हैज हैपेंड टू हर? ओके, हैवंट नोटिस दैट। वो कहते अच्छा ये मैंने नहीं नोटिस किया, शी लुक्स जस्ट द सेम टू मी, देख तो वैसे ही रही है, मतलब ऐसा मुझे तो कुछ नहीं लगा, ठीक है। शी डजंट टू मी, डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग? वो कहता है मुझे नहीं लग रही है नॉर्मल। डोरिस कहती है कि मैं सिर सुन तो नहीं गई, टक्कर खाली गई, दीवार पे सर लग गया, कुछ कुछ हो गया है, नो मेंटली इम्बैलेंस, कुछ हो गया है हमारी मम्मी को, कुछ हो गया है, you know, and what is it, you know, and do you mean she's balmy means what is balmy? She's mad, पागल तो नहीं हो गई है कि कहीं पीछे, हमारे पीछे से कहीं चोट चोट लगी सिर पे और सडनली मतलब कुछ हो गया है। नो यू फैट हेड, यू नो कंकशन शी माइट हैव। वो कहते हैं नहीं नहीं, यू फैट हेड मीन्स यू स्टूपिड पर्सन, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कंकशन जैसा कुछ तो नहीं हो गया उनको, शी माइट हैव। कंकशन क्या होता है बेटा, व्हाट इज कंकशन? अगेन द सेम थिंग, मतलब कंकशन दौरा दूरा तो नहीं पड़ गया कुछ इस तरह हो गया। साउंड्स फार फेच्ड, वो कहते हैं इट इज हाईली अनलाइकली, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है। वेल शी इज फार फेच्ड इफ यू आस्क मी, नहीं हुआ है कुछ तो ऐसा हुआ है अगर मेरे से पूछो तो, ठीक है। शी सडनली बिगिंस टू गिगल, और वो हंसने लग जाती है कि पता नहीं क्या हो गया है, मतलब कैसी हो गई है, मतलब क्या हो रहा है। नाउ देन व्हाट इज इट इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दैट? वो कहते हैं अब क्यों हंसी जा रही हो, तो मतलब इतनी अजीब ढंग से बिहेव कर रही है हमारी माँ और तुम हंसी जा रही हो, मतलब क्यों, क्या हो गया तुम्हें, ऐसा क्या आइडिया आया तुम्हारे पास? शी सेज इफ शी इज गोइंग टू बी लाइक दिस व्हेन डैड कम्स होम, वो सोचती कितना मजा आएगा अगर मम्मी ऐसे ही बिहेव करेगी जब पापा घर में आएंगे, मतलब जैसे उनके लिए तो कुछ एंटरटेनमेंट होगा, है ना, तो ये क्या होगा। शी giggles again and he also begins to guffaw, and what is guffaw means he also laughs very loudly, वो भी बड़ी जोर जोर से हंसता है। कौन हंस रहा है अब? साइरल। I am staying in for that, कहता ठीक है मैं रुकने वाला हूँ ये देखने के लिए, ठीक है, आपस में क्या ड्रामा चलेगा उनका। Two front dress circles for the first house. Mrs. Pearson enters right, carrying a bottle of stout and half-filled glass. अब वो आ गई है उनकी मम्मी, हाथ में हार्ड ड्रिंक ली हुई है, आधा ग्लास भरा हुआ है, आधा वो पी चुकी है। साइरल एंड डोरिस दे ट्राई टू स्टॉप गफॉइंग एंड गिगलिंग, अब वो हंस रहे जोर जोर से, यू नो पागलों के जैसे हंस रहे हैं, और वो एकदम से मम्मी को देख के डर जाते हैं, बट दे आर नॉट क्विक इनफ, और इतनी जल्दी वो रोक नहीं पाए अपने आप को। सो मिसेस पियर्सन रिगार्ड्स देम इन कंटेंट, वो बड़े गुस्से से नफरत से देखती है कि ये क्या कर रहे थे पीछे मेरे से, ठीक है। एंड ही सेज, शी सेज वेरी कोल्डली, बड़े अनइमोशनल, विदाउट एनी इमोशन, विदाउट एनी सेंटिमेंट्स, वो कहती है you two are always talking about being grown up, why don't you both try for once to be your age? क्योंकि हमेशा बातें करते रहते हो कि हम बड़े हो गए, हम बड़े हो गए, हमें बड़ों की तरह ट्रीट करो, अपनी एज के तो बन जाओ पहले, मतलब जैसे वो गिगलिंग गफॉइंग कर रहे हैं ना, वो कहते हैं क्या बच्चों के से कर रहे हो, ठीक है, जस्ट बी योर एज, प्लीज क्लोज द डोर, ओके। So why don't you both try for once to be your age? अपनी एज तक तो पहुंच जाओ, बच्चे हो तो तुम बाद में होगे, ठीक है। She moves to the settee and sits. Can't we laugh now? वो कहते हैं अब हम हंस भी नहीं सकते अपने घर में, इतना क्या हो गया, ठीक है। Yes, if it's funny, go on, tell me, make me laugh. I could do with it. वो कहते हैं ठीक है अगर कुछ फनी है तो हंस सकते हो, मुझे भी बताओ, ठीक है, मैं भी ज्वाइन करूंगी। You know you never understand our jokes, mom. वो कहते हैं कि आप तो कभी, डोरिस कहती है कि आप तो कभी हमारे जोक्स समझती नहीं। एंड शी सेज आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न, वो कहते इतने बोरिंग तुम्हारे जोक्स होते हो ना, बिफोर यू वर बॉर्न, मतलब आई ऐसे जोक्स पे तो मैं, मतलब मुझे वो बासियाँ आती होती थी। आई वॉज यॉर्निंग, दे वर सो बोरिंग, दे आर सो बोरिंग, ठीक है। सो आई फील ड्राउजी व्हेन आई यू नो लिसन टू सच काइंड्स ऑफ जोक्स। ऑलमोस्ट वो फिर होने वाली होगी कि क्या बोली जा रही है मम्मी, है ना, व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, व्हाट हैव वी डन? वो बोलती कि हमने किया क्या है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? एंड वेरी प्रॉम्प्टली इमीडिएटली शी सेज नथिंग बट कम इन, आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन, देन कम बैक व्हेन देयर इज नोवेयर एल्स टू गो। कहती कुछ नहीं, आते हो ऑर्डर देते हो, ठीक है, ये करो वो करो, फिर बाहर चले जाते हो, फिर आते हो जब कहीं और जाने के लिए नहीं होता, मतलब यही है तुम्हारा काम। एंड साइरल सेज वेरी एग्रेसिवली, लुक इफ यू वोंट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट मायसेल्फ। कहता है मैं ऐसे भाषण मत दो, चाय नहीं आपको बनानी मत बनाओ, मैं अपने लिए कुछ ले लूंगा। Why not? He says, ठीक है बनाओ जाके, help yourself. And Cyril turning on his way to the kitchen, mind you, I think it's a bit thick. I've been working. कहता नहीं पर मुझे बड़ा बुरा लग रहा है. It's a bit thick. What do you mean by this? It's a bit thick. He says, mind you, I think it's a bit thick. मतलब? It's a bit harsh. कि आप जैसा आप व्यवहार कर रहे हो, it is very difficult for us to bear. क्योंकि हम सारा दिन काम करके आए हैं. ना आई वर्क ऑल डे, आई बीन वर्किंग। डोरिस कहती है सेम हेयर, और वो कहती क्या क्या काम किया है? 8 आवर डे, 8 घंटे काम करके आए हो? यस 8 आवर डे एंड डोंट फॉरगेट इट।
मिसेस पीयर्सन कहती है आई हैव डन माय टास्क, मेरे 8 घंटे खत्म, मेरे भी खत्म। अगर तुम घर आते हो और कहते हो हम 8 घंटे काम करके आए, तो मैंने भी तो घर में 8 घंटे काम किया, मेरा भी काम खत्म। तुमने घर आके ऑर्डर देने हैं कि हम 8 घंटे काम करके 8 घंटे काम करके आए, तो मेरे लिए भी वो अप्लाई करता है ना, आई हैव डन माय टास्क, ठीक है, दैट्स डिफरेंट। ऑफ कोर्स इट इज, वो कहते नहीं वो अलग बात है। एंड वेरी कामली शी सेज इट वाज, वो डिफरेंट था, नाउ इट इजंट। 40 आवर वीक फॉर ऑल नाउ, अब से सब हफ्ते में 40 घंटे काम करेंगे, ठीक है। तुम 40 मीन्स 8 into 5, द 5 डे तुम काम करते हो ना, हफ्ते में 5 days अ वीक है तुम्हारा, आप 40 आवर्स काम करते हो तो मैं भी 40 आवर्स करूंगी। जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माय 2 days ऑफ। अभी वीकेंड भी देखो, वो भी मेरा भी वीकली ऑफ होने वाला है, 2 days ऑफ, तुम्हारे को भी तो ऑफ मिलता है, आई एम गोना गेट वीकली ऑफ, ठीक है। डोरिस एंड साइरल दे एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लांसेस, दे आर सो शॉक्ड, मोर देन अ सरप्राइज इट इज शॉक फॉर देम, दे आर एक्सचेंजिंग शॉक ग्लांसेस, देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन, फिर वो घूर के अपनी मम्मी को देखते हैं, वो बड़ी काम है, वेरी कंपोज्ड, ठीक है। साइरल मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, वो कहता है मेरे को तो कुछ खाने के लिए चाहिए, मेरे को चक्कर चुक्कर ना आ जाए, मतलब अब लुक एज इफ आई नीड टू कीप, मेरे को अपनी हिम्मत बनाने के लिए कुछ पेट में मेरे को जाना चाहिए, कुछ भूख लगी है मुझे। ही एग्जिट्स टू द किचन एंड डोरिस शी मूव्स टू द सेटी एंग्शियसली, मम्मी यू डोंट नीड, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे। वो घबरा गई, कहती अभी कुछ नहीं, कहती सैटरडे संडे को आप कुछ भी नहीं करोगी, ठीक है। मिसेस पियर्सन इज नो, आई वुडंट गो दैट फार, कहती नहीं इतना ज्यादा तुम्हारे से बुरा नहीं करूंगी, आई माइट मेक अ बेड और टू, थोड़ा बहुत तुम्हारी डिस्टर्बेंस ठीक कर दूंगी मैं, एंड आई माइट डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज ए फेवर, तुम्हारे पे एहसान करूंगी, थोड़ी बहुत कुकिंग कर दूंगी मैं, विच मीन्स ऑफ कोर्स आई हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली एंड थैंक फॉर एवरीथिंग एंड जनरली मेड अ फर्स्ट ऑफ, ठीक है। मतलब हर चीज के लिए मेरे को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और जो भी मैं काम करूंगी उसके लिए मुझे थैंक यू कहना पड़ेगा, यू हैव टू थैंक मी, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट योर मदर डज फॉर यू, ठीक है। बट एनी ऑफ यू 40 आवर अ वीकर्स, ये 40 घंटे जो काम करने वाले मेरे को सुनाते रहते हो, who expects to be waited on hand and foot on Saturday and Sunday with no thanks for it, are in for a nasty disappointment, ठीक है। अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहूं कि आप क्या करूं, आप क्या करना है, आप क्या लाऊं, आप क्या करना है, then you are going to have a nasty disappointment, तो बड़े disappointment होगी तुम्हें, बड़ी डिजेक्शन होगी, तुम्हें बड़ा बुरा लगेगा। might go off for weekend, फिर मैं वीकेंड के लिए चली जाऊँ कहीं मनाने, वीकेंड मनाने, go for the weekend, वो is terrified, डोरिस is terrified, वो इतना घबरा जाएगी कहाँ चले जाओगे आप, ठीक है। why not, I could do with the change, मुझे भी तो चेंज चाहिए, तुम लोग चले जाते हो जब तुम्हारा दिल करता है, कभी यहाँ पार्टी कभी वहाँ पार्टी, कभी कहीं कभी कहीं, I am stuck here day after day, week after week, if I don't need a change, who does, मैं सारा दिन घर में रहती हूँ, ठीक है, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, मैं तो कहीं नहीं जाती, तो मुझे सबसे ज्यादा घर में चेंज किसको चाहिए, मुझे, अगर मुझे नहीं चाहिए तो किसी को नहीं चाहिए, आई एम द वन हु नीड्स चेंज इन माई लाइफ, बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विद, आज तक तो वो कभी गई ही नहीं ऐसे कभी, तो वो पूछ रहे कहाँ जाओगे आप और किसके साथ जाओगे, दैट्स माई बिजनेस, यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विद, डू यू, तुम मुझसे कभी पूछते हो कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, मुझसे कैसे पूछ रहे हो, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे कैसे पूछ रहे हो तुम, ठीक है, दैट्स डिफरेंट। वो कहते नहीं वो तो डोरिस कहती नहीं वो तो अलग बात है, the only difference is that I am a lot older and better able to look after myself, कहती डिफरेंस तो है, पर डिफरेंस जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है, डिफरेंस क्या है कि मैं तुम्हारे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं तुम्हारे से बड़ी हूँ, एंड आई एम बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, ठीक है। सो इट्स यू हु शुड डू दी आस्किंग, तो तुम्हें मुझसे परमिशन लेनी चाहिए, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए, मुझे नहीं तुम्हारी परमिशन लेनी है, ठीक है। डिड यू फॉल और डिड यू हिट योरसेल्फ, वो कहती मम्मी सच्ची बता दो कहीं गिरी गुरी तो नहीं हो, कोई चोट चोट तो नहीं लगी है, एंड शी इज वेरी कोल्डली नो, बट आई हिट यू विद समथिंग गर्ल इफ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस, कहती मैं तो नहीं गिरी हूँ, मैं तुम्हें जरूर मारूंगी किसी चीज से अगर ये इतने स्टूपिड क्वेश्चंस पूछने तुमने बंद नहीं किए तो। एंड डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ, वो मुंह खुला तो खुला रहेगा कि ये क्या हो रहा है हमारे घर में, एंड शी इज अगेन रेडी टू क्राई, रोने वाली होगी है, ओ दिस इज ऑफुल, और वो रोने लग जाती है बहुत जोर से, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। मिसेस पियर्सन स्टॉप ब्लबरिंग, ब्लबरिंग मीन्स जोर जोर से रोते हो ना, जब आपके मतलब रुक नहीं रहा होते आंसू और आप बहुत जोरों से आवाज निकाल निकाल के रोते हो, ठीक है। सो शी इज वीपिंग वेरी नॉइजली, वो कहती स्टॉप ब्लबरिंग, यू आर नॉट अ बेबी, छोटे बच्चे नहीं हो, छोटे बच्चे रोते ना, मेरे को टॉफी नहीं लेके चॉकलेट तो रोने शुरू हो जाते हैं जोर जोर से, लिट जाते हैं मार्केट में, तो वो कहती है ये क्या कर रहे हो तुम, तो यू आर नॉट अ बेबी, if you're old enough to go out with Charlie's friends,
then you are old enough to behave properly, so stop it. कहती है अगर तुम अपने आप को इतना मैच्योर समझती हो कि मेरी परमिशन के बिना एक ऐसे लड़के के साथ जा सकती हो जो मेरे को पसंद भी नहीं है, तो तुम इतनी मैच्योर हो कि ऐसे जो बचकाने की हरकतें कर रही हो वो बंद करो, ठीक है? सो जस्ट स्टॉप इट. George Pearson, now this is her husband, Mrs. Pearson's husband. So we have Doris Pearson, Mrs. Pearson, Mrs. Fitzgerald, then we have Doris Pearson, we have had Cyril Pearson, now last character is George Pearson. George Pearson enters left, he's about 50, fundamentally decent but solemn, self-important, pompous kind of a person, you know, so pompous is self-important and very foolish kind of way. अपने आप को जो लोग कई बड़ी importance देते हैं ना, कि मैं ही, they live in the world of I, me and myself, so he's that kind of a person, ठीक है? He's preferably he should be a heavy, slow moving type, और मतलब बड़ा धीरे धीरे चल रहा है, थोड़ा भारी सा इंसान है. And he notices, जैसे ही वो enter करता है, what does he notice? He noticed Doris's tears, कि बेटी उसकी रो रही है. What is this? Can't be anything to cry. वो कहता है ऐसे क्या बात है, क्यों रो रही हो? You will see, वो कहती है आपको पता चल जाएगा, ठीक है? Doris runs out left with a sob or two on the way, एक दो आंसू बहाते हुए चली जाती है. George stares after her a moment and then he looks at Mrs. Pearson. Did she say you will see? क्या बोला इसने? आप देखोगे? क्या बोला? Yes. What did she mean? क्या मतलब था इसका, ऐसे क्यों बोल के गई मुझे? Better ask her. मुझसे पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? George looks slowly again at the door and then at Mrs. Pearson. वो कह रहा है बेटी मेरे को ऐसे बोल के चली गई, वाइफ मेरी कैसे बोल रही है? Then he notices the stout. फिर उसको नजर आ रही है कि मेरी वाइफ तो पी रही थी दिन दहाड़े. So he notices the stout that Mrs. Pearson raises for another sip. वो एक और सिप ले रही है उसके सामने. His eyes almost bulge. आंखें बाहर आने वाली हो गई उसकी. Bulging eyes means they swell outwards. जब आप विश्वास नहीं करते हो आंखें आपकी मतलब ऐसे ऐसे आप आंखें खोल खोल के देखते हो. So his bulging eyes, eyeballs बाहर आ रहे होते हैं आपके. So his eyes bulge outwards. Stout? Yes. What are you drinking stout for? इसलिए पी रही हो भाई इस टाइम पे? Because I fancied some. Means I fancied some means what? I felt like. So I'm having. मेरा मन किया तो मैं पी रही हूँ, इसमें क्या क्वेश्चन हुआ, ठीक है? At this time of the day, इस टाइम पे. Yes, what's wrong with it at this time of the day? क्या गलत है इस टाइम पे? So he's bewildered. What is bewildered? It's again very surprised and mix of shockingly surprised. He says nothing, I suppose any, but I've never seen you do it before. हैरान है, वो कहता है ऐसा कुछ गलत नहीं है इस टाइम पे, पर आज तक इतने साल हो गए मैंने देखा नहीं तुम्हें इस टाइम पे ऐसे पीते हुए. Well, you are seeing me now. अब तो देख रहे हो ना, ठीक है? With heavy distaste, yes, and I don't like it. कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा. It doesn't look right. अच्छा नहीं लगता ऐसे, ठीक है? I am surprised, मैं हैरान हूँ तुम पे कि तुम ऐसे बच्चों के सामने इस टाइम पे पी रही हो. It doesn't look nice, ठीक है? So she says, well, that thoughts to be a nice change for you. That ought to be a nice change. कहती है आपके लिए भी, मतलब आप कब से मैं ऐसे ही दिख रही हूँ आपको, ऐसे ही मतलब इतने सालों से मेरे बिहेवियर में मुझ में कोई चेंज नहीं, तुम्हें भी चेंज चाहिए. दिस ought to be a nice change. ये अच्छा चेंज है. What do you mean? It must be some time since you were surprised at me. कि मैंने कभी हैरान ही नहीं किया अब तुम्हें कब से इतने सालों से, तो मैं भी मौका दे रही हूँ तुम्हें, ठीक है? To be surprised at me. I don't like surprises. I am all for the steady going on. You ought to know that by this time. तो कहते हैं मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है. हमारी शादी को इतने साल हो गए, तुम्हें ये तो इतना तो पता ही होगा. I don't like surprises. They're not these kind of surprises. I don't like them. By the way, I forgot to tell you this morning, I wouldn't want any tea. Special snooker match night at the club. कहते हैं मैं सुबह बताना भूल गया, आज मुझे चाय नहीं पीनी है क्योंकि मेरे क्लब में मैंने जाना है, वहाँ पे भी हैव अ स्पेशल स्नूकर नाइट एंड अ बिट ऑफ सपर गोइंग, थोड़ा खाना वाना भी होगा वहाँ पे, सो नो टी. दैट्स देयर इज. कहती बिल्कुल ठीक है, मैंने चाय तो बनाई नहीं, मैं पीनी नहीं है, मैंने बनाई भी नहीं है. देयर इजंट एनी. एंड ही इज अस्टोनिश्ड, ही इज अगेन सरप्राइज्ड. यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी? मतलब तुमने बनाई नहीं, ये कहना चाहती हो? यस, एंड अ गुड थिंग टू, एज इट्स. और अब ठीक ही है ना, मैंने नहीं बनाई क्योंकि आपको तो पीनी नहीं है. So he's aggrieved. Aggrieved means he's distressed. He says, that's all very well, but suppose I wanted some. वो कहता ठीक है, आज के लिए तो ठीक है, मगर अगर मैं आता और मुझे चाहिए होती और तुमने तो बना नहीं रखी, फिर? My goodness, listen to this man. Annoyed because I don't get a tea for him that he doesn't even want. मतलब ये मुझसे गुस्सा है उस चीज के लिए कि मैंने उसके लिए बनाई नहीं जो उसको चाहिए भी नहीं. Look at this man, कैसे बोल रहा है? Ever tried that at the club? अपने क्लब पे कभी ऐसे ट्राई किया है? Tried what at the club? क्लब पे क्या ट्राई किया? Going up to the bar
कि क्लब में जाओ, बार पे जाओ, एंड टेलिंग देम you don't want a glass of beer, but you are annoyed because they haven't already poured it out. तुम्हें बियर नहीं चाहिए, पर तुम वो बार टेंडर से गुस्सा हो कि उसने तुम्हारे ग्लास में डाली क्यों नहीं. ठीक है, ट्राई दैट आउट, एक बार ऐसे ट्राई करो एंड सी व्हाट यू गेट. देखना तुम्हारे को क्या जवाब मिलता है. आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या बोल रही हो. दे वुड लाफ एट यू, मजाक बनाएंगे वो तुम्हारा, इवन मोर देन दे डू नाउ. मतलब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं सारे क्लब में. और अगर तुम ऐसे जो जैसे अभी मेरे साथ बिहेव कर रहे हो ऐसे क्लब में करोगे तो और ज्यादा मजाक बनेगा तुम्हारा. एंड he says indignantly. What is indignantly? What is indignantly? मुझ पे they don't laugh at me. मेरे पे नहीं हंसते हैं वो. कौन हंसता है मुझ पे नहीं हंसता कोई. Of course they do. You ought to have found out by this time. क्यों तुम्हें अभी तक पता ही नहीं चला कि you are a laughing stock for them. ठीक है, तुम्हारे को तो तुम्हारे पीठ पीछे इतना मजाक उड़ाते हैं तुम्हारा, तुम्हें पता होना चाहिए था. Anybody else would have done. कोई तुम्हारी जगह पे कोई और होता तो उसको अब तक पता चल चुका होता. You are one of their standing jokes. ठीक है, फेमस. दे कॉल यू पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन. तुम्हारा नाम भी रखा हुआ उन्होंने, एक नाम से बुलाते हैं पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन. पता है तुम्हें? बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड यू आर सो पॉम्पस. You are so absorbed in your own self and you walk so slow, so they call you Pompey Ompy Pearson. Horrified. Never. वो कहता नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा. It's always beaten me why you should want to spend so much time at a place where they're always laughing at you behind your back and calling you names. मुझे कभी आज तक समझ नहीं आया. It's beaten me means I fail to understand this, कि तुम ऐसी जगह पे इतना टाइम बिताते हो उन लोगों के साथ जो पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं. लीविंग योर वाइफ एट होम, मुझे घर में छोड़ के चले जाते हो. ठीक है, नाइट आफ्टर नाइट, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हर, अपनी वाइफ को लेके जाओ बाहर. ऐसे लोगों के साथ टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना? हु डजंट मेक यू लुक लाइक अ फूल. आई डोंट मेक यू लुक लाइक अ फूल, बट दोस पीपल डू. और तुम्हें पता ही नहीं उनके बारे में. उनके साथ तुम रात रात को जाते हो, इतने घंटे बिता के आते हो. व्हाट फॉर? Cyril enters right with a glass of milk in one hand and a thick slice of cake in the other. अब Cyril आ गया, एक हाथ में दूध का ग्लास है, बेचारा कुछ बना तो पाया नहीं, दूध और केक लेके आ गया. ठीक है, एंड जॉर्ज इज ऑलमोस्ट डेज्ड. उसको बेहोशी आ रही है जॉर्ज को. ही टर्न्स टू हिम अपीलिंगली. वो जॉर्ज उसके पास जाता है अपने बेटे की सपोर्ट के लिए, इमोशनल सपोर्ट, कि शायद ये मुझे सपोर्ट करेगा. हियर साइरल, यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस. हो गया था, तुम भी तो मेरे साथ क्लब गए हो. ठीक है, दे डोंट लाफ एट मी, मेरे पास तो थोड़ी है. ठीक है, एंड दे डोंट कॉल मी पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन. डू दे? उससे सपोर्ट चाह रहा है. ठीक है, कि वो उसकी हेल्प करेगा. बोलेगा नहीं नहीं पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बोलते वो, ऐसा कुछ नहीं है ना. एंड साइरल इज इम्बैलेंस्ड and he hesitates. Go on, tell me, बताओ मुझे. Do they? Well, yes, Dad. I'm afraid they do. ये वो कहते हैं सच्ची में आपको बुरा तो लगेगा, पर ऐसा ही है. George slowly looks from one to the other. एक वाइफ को देखता है, फिर अपने बेटे को देखता है, and he is staggered. He staggered means बस वो गिरने ही वाला. He's about to falter. एक चेयर की सपोर्ट लेके बैठने की कोशिश करता है. And he says, I'll be damned. I'll be damned means, what do you mean by this? I'll be damned here in this context. I'll be damned मतलब बोलो. I will be damned. Online students क्या मतलब है यहाँ पे? What is this an expression of what? That he was being fooled. That he was being fooled. He was being fooled by everybody around him. ठीक है, जॉर्ज एग्जिट्स लेफ्ट स्लोली ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड. वो बेचारा चला जाता है. वो कहता है अब नहीं मैं यहाँ पे. आई कैन नॉट स्टैंड माई वाइफ, आई कैन नॉट स्टैंड माई सन. इट वुड बी बेटर दैट आई गो आउट. साइरल आफ्टर वॉचिंग हिम गो टर्न्स इंडिग्नेंटली टू मिसेस. इंडिग्नेंटली बड़े गुस्से से अपनी मदर की तरफ देखता है. नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट मॉम. दैट्स नॉट फेयर. ऐसे नहीं बताना चाहिए था आपको. यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स. आपने उनको बड़ा दुख पहुंचाया, चोट पहुंचाई है. Mine too, मैं मुझे. ठीक है, sometimes it does people good to have their feelings hurt. कभी कभी अच्छा होता है लोगों को सच तो पता चलना चाहिए, even if they feel bad, but they should know the truth. The truth ought not to hurt anybody for long, क्योंकि सच पता जब चल जाता है बहुत ज़्यादा देर तक आपको दुख नहीं पहुंचाएगा. If your father didn't go to the club so often, perhaps they would stop laughing at him. इतना ज़्यादा वो क्लब जाते हैं, शायद इतना ज़्यादा अगर कम कर देंगे जाना, शायद वो भी उनका मजाक उड़ाना बंद कर देंगे. आई डाउट इट. ग्लूमीली मीन्स वेरी
very sadly he says, I doubt it. मुझे नहीं लगता ऐसा. Severely she says, possibly you do, but what I doubt is whether your opinion's worth having. ठीक है, हो सकता है तुम जैसे सोचते हो वैसा ही हो, पर मुझे लगता है कि तुम कितने कहाँ मैटर करते हो कि तुम्हारा ओपिनियन मैं लूँ. योर ओपिनियन इज नॉट वर्थ हैविंग. ठीक है, व्हाट डू यू नो, तुम्हें क्या पता है, तुम अभी बच्चे हो. ठीक है, यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेस. तुम खुद तो रेसेस में पैसा उड़ाते हो. ठीक है, व्हाट आर ग्रे हाउंड रेसेस, लाइक डॉग रेसिंग एंड हॉर्स रेसिंग. उनमें कितना पैसा तुम अपना बर्बाद करते हो, तुम्हें क्या पता है. ठीक है, एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोज. सल्करी सेज, वेल व्हाट इफ आई डू, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या. I've got to enjoy myself. मुझे भी थोड़ा फ्री टाइम, थोड़ी एंटरटेनमेंट चाहिए. मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ तो क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम. ठीक है, मिसेस पियर्सन, आई वुडंट माइंड सो मच इफ यू आर रियली एंजॉइंग योरसेल्फ. कहती मैं माइंड नहीं करती अगर तुम सच में एंजॉय कर रहे होते, बट आर यू. एंड वेयर्स इट गेटिंग यू, और ये तुम्हें कहाँ लेके जा रही है चीज. देयर इज अ शार्प हरिड नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट माइट बी फॉर मी. वो कहता है कोई आ गया, शुक्र है कोई आया है, मेरे लिए होगा शायद कोई, मैं देखता हूँ जाके. ठीक है, Cyril hurries out left. In a moment he re-enters and he just closes the door behind him and he says, it's that silly old hag from next door. किसको बोल रहा है, मिसेस फिट्जराल्ड को. वो कहता है वो जो silly old hag. What do you mean by silly old hag? बुढ़िया, वो जो हमारे पड़ोस में रहती है बेवकूफ सी, वो आई है. ठीक है, इट्स अ silly old hag from next door. Mrs. Fitzgerald, you don't want her here, do you? आप नहीं चाहते हो ना वो यहाँ पे आए हैं, बैठे यहाँ पे. Do you want her? And she says, वो तो उसके बारे में बोल रहा है. ठीक है, she says very sharply, certainly I do, ask her in and don't call her silly old bag either. She's a very nice woman. क्यों बोल रहे हो उसको ऐसे, वो तो इतनी अच्छी लेडी है. ठीक है, with a lot more sense than you will ever have. इतनी उनमें सेंस है, तुम्हारे में तो कभी भी नहीं आने वाली है. So don't call her like that. Cyril exits left. Mrs. Pearson finishes her stout, smacking her lips. Cyril re-enters, ushering in Mrs. Fitzgerald, who hesitates. अब वो तो Mrs. Pearson है ना, वो तो घबराई आ गई कि पता नहीं मेरे घर में अब क्या हो चुका होगा अब तक. So come in, Mrs. Fitzgerald. I just wondered if everything's all right. मैं सिर्फ देखने आई हूँ, सब कुछ ठीक है. ठीक है, no it isn't. Cyril says sulkily. What is sulkily? Very sadly, very gloomily, और मतलब मुंह लटका के कहता है. ठीक है, वेरी चिड़चिड़ा सा होके कहता है, नो इट इजंट ऑल राइट. ऑफ कोर्स इट इज, यू बी क्वाइट. कहती बिल्कुल ठीक है, तुम चुप करो. ठीक है, एंड साइरल सेज इंडिग्नेंटली एंड लाउडली, व्हाई शुड आई बी क्वाइट. आई टेल यू टू, यू सिली स्पॉइल्ड यंग पीकन. वो उसको बुला रही है अब अपने एक नेबर के सामने, अपने बेटे को, ग्रोन अप एडल्ट बच्चे को जोर से क्या बुला रही है. शी इज कॉलिंग हिम silly, spoiled, young and a clumsy, stupid kind of a boy. And Mrs. Fitzgerald says, oh no, Shori, no, please, ऐसे मत बोलो. And Mrs. Pearson says very severely, जोर से, strictly वो क्या बोलती है, Mrs. Fitzgerald, just let me manage my family in my own way. मत interrupt करो, मेरी फैमिली को मुझे अपने तरीके से हैंडल कर लेने दो. ठीक है, कौन कह रही है ये, Mrs. Pearson. Yes, but Cyril, and Cyril says, Mr. Cyril Pearson. अब वो मिसेस फिट्जराल्ड है, उसके लिए तो वो साइरिल ही है ना, उसका बेटा ही है. मिसेस फिट्जराल्ड तो नहीं, वो मिसेस पियर्सन है ना. साइरिल को नहीं पता, वो उसको कहती है बट साइरिल, और वो बड़े उससे कहता है मिस्टर साइरिल पियर्सन. कहता है मुझे साइरिल मेरे नाम से क्यों बुला रहे हो आप. आई एम मिस्टर साइरिल पियर्सन फॉर यू, मिसेस फिट्जराल्ड. एंड साइरिल ही जस्ट stalks off into the kitchen. And stalks off means he moves very angrily, in a very angry way, where towards the kitchen. And Mrs. Fitzgerald moving to the settee, whispering, oh dear, what's happening. कहती क्या हो रहा है ये. Nothing much, just putting them in their places, that's all. Doing what you ought to have done long since. ठीक है, अब तक तुम्हें बहुत पहले ऐसा कर लेना चाहिए था, मैं सिर्फ वही कर रही हूँ. Is George home? Yes, I've been telling him what they think of him at the club. पूछती मेरे हस्बैंड आ गए, कहती हाँ मैं बताया उनको अभी क्लब में उसके बारे में क्या सोचते हैं. ठीक है, वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम, डोंट दे. कहती बहुत अच्छा सोचते हैं. मिसेस पियर्सन कहती है नो दे डोंट एंड नाउ ही नोज इट. वो कहती है नहीं बिल्कुल नहीं सोचते, और जो सोचते हैं आप वो उसको भी पता है कि मैंने बता दिया है. ओ डियर आई विश यू हैडंट. कहती नहीं बताना चाहिए था आपको.
nonsense, doing them all a world of good and they'll be eating out of your hand soon, you will see. कहते मैं सबके लिए सब ठीक कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सब ठीक हो जाने वाले हैं, अब देखना तुम. I don't think I want them to be eating out of my hand. Well, whatever you want, they'll be doing it. कहते कुछ भी जो तुम चाहते हो ना, देखना थोड़ी देर में वैसा ही होने वाला है, सब तुम्हारी बात मानेंगे. You are going to be the mistress of your house, all three of them. Just mark my words. सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनो, Mrs. Pearson. George enters left glumly. Glumly means he looks very sad and he looks very dejected. He is unpleasantly surprised when he sees the visitor. He moves to the armchair. वो देखता है Mrs. Fitzgerald आई हुई है. He sits down heavily and very glumly. He lights the बड़े dejectedly, बड़े दुखी से मन से वो cigarette. He lights his pipe. Then he looks from Mrs. Pearson to Mrs. Fitzgerald, who is regarding him anxiously. Just looked in for a minute, I suppose, Mrs. Fitzgerald. वो कहते हैं आप अभी आई हो, शायद 1-2 मिनट के लिए आई हो. And she says, yes, I suppose so, George. वो कहती है जॉर्ज मतलब एक नेबर है, मम्मी की फ्रेंड है, मम्मी की फ्रेंड है. वो आपके पापा को उनके नाम से तो नहीं एड्रेस करेंगे ना, वो मिस्टर शर्मा, मिस्टर दिस एंड मिस्टर दैट ऐसे बुलाएंगे ना. वो जॉर्ज कैसे बोल रही है? So he's aghast, he feels, very shocked and says, George, oh, I'm sorry. What does it matter? Your name is George, isn't it? उसकी वाइफ क्या बोली, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा नाम तो जॉर्ज ही है ना, वैसे जॉर्ज बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है. Who do you think you are? क्या समझते हो अपने आप को? कहीं के राजा महाराजा? क्या are you the Duke of Edinburgh? क्या हो तुम? ये कोई राजा महाराजा तो नहीं हो, तो जॉर्ज ही तो हो, जॉर्ज बोल दिया तो क्या हो गया. And he says very angrily, what's he got to do with? तो राजा महाराजा का किसी ड्यूक का क्या लेना देना? Just tell me that. And isn't it bad enough without her calling me George? मतलब पहले ही इतना बुरा हो चुका है हमारे घर में जो आज चल रहा है, फिर एक तुम्हारी नेबर आके मुझे ऐसे बुला रही है. नो टी, घर में कोई चाय नहीं बनी. पॉम्पी पियर्सन, ठीक है, बताया तुमने मुझे. एंड पुअर डोरिस हैज बीन क्राइंग हर आईज आउट. वो बेचारी लड़की रो रही है वहाँ पे. एंड लिटरली शी इज क्राइंग हर आईज आउट. पूरा रो के बुरा हाल कर रखा है उसने. ठीक है, पहले ही इतना कुछ हो रहा है. देन माई नेबर इज कमिंग इन एंड शी इज एड्रेसिंग मी बाय माई फर्स्ट नेम, और तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो मुझे ऐसे बोल रही है तुम क्या राजा महाराजा समझते हो? व्हाट इज दिस गोइंग ऑन इन माई हाउस? So he's shocked and he's surprised and he puts up a question to his wife. So we'll just continue from here the next time we meet and we'll be able to finish off this chapter then. ठीक है, 3-4 pages रहेंगे वो हम next time खत्म कर देंगे. So that is all for today. If there's anything that you want to ask, you can ask me, and otherwise I'll just move on to the attendance.